our online state level lectures. Myself, Gayatri, work from BMC's Education Department, Goregaon MPS. Today, I am going to teach you the history lesson number 9, that is Changing Life Part 1. So, students, let me start. Now, student, we have studied the period from the year that is 1961 to 2000. Okay, what we have already studied, that after independence, what were the changes we have seen, that we have discussed about the Indian internal challenges, economic development, status of education, empowerment of women, science and technology, industry and trade in the previous lessons. Now, all these are the changes we had observed after independence. Okay. Now, the speed of change in the 20th and the 21st century has been tremendous. Now, human life is changed, totally changed. Things we have could have been even imagined earlier. Now that were a part of reality. Now, which type of tremendous change? ओके, जैसे हम बोलते हैं कि हमने बहुत सारे चेंजेस देखे, अब क्या चेंजेस देखे? सी द स्टेटस ऑफ वुमन in our society. See the first picture, that which type of status they have in ancient time, and now what the change. Now see the status of woman in our society. After that, see the change, how the villages and how the cities. Okay. After that, see the status in the field of jobs, which type of jobs the people were doing in the ancient, and which type of jobs our people are doing in this present era. Now these all are the changes from 1961 to 2000 or up to 21st century. Now these changes have taken a great place in our society. ये सब changes ने हमारी society में एक बहुत बड़ा role play किया है. तो किस तरह का changes? Which type of changes? Okay. Now we are studying that. Now in ancient and medieval period, religious was an important part of our person's identity. Now in ancient time and medieval period, ठीक है, ancient time जो हमारा पुरातन जो टाइम था वो, और मेडिवल जो मध्यकालीन युग जो था हमारा, तो उसके अंदर हमें क्या चेंजेस दिखे? तो सबसे बड़ी चेंज थी वो हमारे सोसाइटी में थी, वो थी कास्ट को लेके, वो था रीजन को लेके। ठीक है, कि किस तरह से हमारे एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड में जो कास्टिसिज्म चलता था वो सब अभी चेंज हो गया। नाउ कास्ट लाइक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एंड अनटचेबल्स। नाउ इन दैट टाइम, इन प्रीवियस टाइम, और वी कैन से इन एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड्स, the Brahmin caste people only have to do workshops, bidding, or prayer in the temples. The Kshatriyas have to participate in military only. They can't do anything else. Vaishya people only do businesses. Okay. And now for the place of Shudra and untouchables, and their work was only to clean roads or garbages or put human waste. All these are the uh, work of Shudras and untouchables. So their shadow was also not be reflect on others. These were the some conditions in that period. Okay. But now because of this modernization, now modernization has posed some challenges before all these religions. Now first of all, what do we mean by modernization? Now modernization has posed some challenges before all religions. But before this, we have to know about what is modernizations. Now modernizations is a process by which modern scientific knowledge is introduced to the society with a ultimate process of achieving a better and more satisfactory life. ओके. मॉडर्नाइजेशन को किसको बोलते हैं? मॉडर्नाइजेशन हम उसको बोलते हैं कि जिस तरह से हम अपनी लाइफ को कितना इजी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आपके घर की ही बात है। जैसे आपके घर में पहले जो दादी थी वो सिलबट्टे पे मसाला पीसा करती थी, लेकिन अभी आपके घर में मम्मी मिक्सर यूज करते हैं, मॉडर्नाइजेशन हो गया। ठीक है,
क्योंकि सारी चीजें जो है वो मॉडर्नाइज हो रही है, और ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि हमारी लाइफ जो है हमें इजी बनानी है, और इसी यही नाम है मॉडर्नाइजेशन का। ओके, नाउ after that, and this modernization posed some changes before all religions. अब ये सब जो changes थे हमको हमारी लाइफ के साथ साथ हमें अपने रिलीजन में भी देखने को मिला। बट in India, we know that Hinduism, Islamism, and Christian, Sikkim, Jain, both all these religions are present in our India. But this man, Dr. Baba Saheb Ambedkar, brought a major change in our tradition mindset, because religion is related to our mindset. ठीक है, रिलीजन जो होता है, धर्म जिसको हम बोलते हैं, वो कहीं हमारे माइंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कि हम अगर बोलते हैं कि अगर हम हिंदू है तो हमको सिर्फ मंदिर के सामने ही झुकना चाहिए, हमको किसी मस्जिद या गुरुद्वारे के सामने नहीं झुकना चाहिए। ये हमारा माइंड सेट था पहले। लेकिन अब जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनके कुछ काम ऐसे हुए जिन्होंने ये सब हमें चेंज करने के लिए मजबूर कर दिया कि नहीं, भगवान एक ही है। चाहे वो मंदिर में हो, चाहे वो मस्जिद में हो, चाहे वो गुरुद्वारे में हो, चाहे वो चर्च में हो, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। तो ये सब चेंजेस लाए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। ठीक है, अब विच टाइप ऑफ माइंडसेट? सबसे पहले जो हमने बोला कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ब्रॉट अ मेजर चेंज इन द ट्रेडिशनल माइंडसेट। अब ये माइंडसेट क्या है? माइंडसेट है विद द रिलेशन ऑफ रेसिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय रेसिज्म? रेसिज्म का मतलब है किसी के भी रेस, जात, वर्ण जो होता है उसको लेके जो हम डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं उसको हम बोलते हैं रेसिज्म। फॉर एग्जांपल, जैसे इन इंडिया वी ऑल आर आर्यंस। ओके, वी आर नोन एज आर्यंस। बट जिस साउथ इंडिया के जो लोग हैं, दे आर द्रविडियंस। श्रीलंका हो गया या फिर साउथ इंडिया जो हो गया वो द्रविड़ है। एंड नॉर्थ पार्ट में आप बोलोगे तो वो सब आर्यंस हैं। अगर आप जाते हो मेघालय, आसाम, वो उनका फेस कट जो है हमसे चेंज होता है। क्यों? बिकॉज दे आर फ्रॉम मंगोलियन रेस, वो मंगोलिया के रेस से हैं। इसलिए इन सब के जो चेहरे हैं या फिर ये बनावटें अलग अलग हैं, बिकॉज वी आर फ्रॉम डिफरेंट रेसेस। बट नाउ वॉट एवर, नाउ वी आर ऑल इक्वल। हम सब एक हैं। हम ऐसा बोलते नहीं कि हम साउथ इंडियन लोगों से कोई रिलेशन नहीं रखेंगे या फिर उनको उनसे कोई सामान नहीं खरीदेंगे बिकॉज दे आर द्रविडियंस, हम ऐसा नहीं बोलते हैं। ठीक है, या फिर पीपल फ्रॉम आसाम, बंगाल और फ्रॉम मणिपुर, हम उनके साथ कोई रिलेशंस नहीं रखते क्योंकि दे आर फ्रॉम मंगोलियन फेस कट। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस चेंज, आफ्टर दैट कास्टिज्म इज देयर। कास्ट वाइज जो हमारे इंडिया में डिफरेंशिएशन था कि अलग अलग कास्ट के लोग हैं, उन्होंने वही काम करना चाहिए, वैसे ही रहना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये हमारी सारी की सारी माइंडसेट जो है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने चेंज किए विद द हेल्प ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हाट दिस कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस, किस टाइप का चेंज उन्होंने हमको दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा मीडिया है जिससे कि पूरी गवर्नमेंट जो है जो कहती है वही कंट्री के लोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो था, ये सारी चीजें, इक्वालिटी ऑफ our all religions, this comes through the Indian constitution. Now according to our constitution, all Indians are equal before the law. All people are equal. Maybe they are from different races, caste, gender, or place of birth. All are equal. All citizens have the right to freedom to speech or expression, freedom to assemble peacefully without arms, freedom to form association, freedom to move, freedom to live and settle down anywhere on Indian territory, and to practice any occupation. Indian citizens living anywhere in India enjoy the right to nurture their languages, script, and culture. Now, see, we cannot discriminate on the basis of racism. जैसे मैंने आपको बताया कि our constitution give this opportunity that don't go for the racism. ठीक है, आप रेसिज्म, ब्लैक एंड व्हाइट पीपल है वो मत करो, कास्टिसिज्म है, लोअर कास्ट, मिडिल कास्ट, अपर क्लास,
After that, gender, that is male and female. Now place of birth, upper caste people, lower caste people. What are they? जैसे मैंने आपको क्लियर किया कि रेसिज्म मतलब वर्ण भेद होता है, कास्टिज्म जातवाद होती है, जाति जो होती है हम अलग अलग उसको लेके हमारे इधर कुछ मतभेद होते हैं, वो नहीं होने चाहिए। आफ्टर दैट मेल एंड फीमेल, ठीक है। जेंडर है, चाहे वो हमारे इंडिया में स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के ही समान हक होते हैं। आफ्टर दैट प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो किस प्लेस पे जन्म लेता है, वो किस फैमिली से जन्म लेता है। अगर समझ लीजिए कि अगर कोई पर्सन राजा रजवाड़े के फैमिली से बिलोंग करता हो और उनके घर में अगर बेबी है तो उसको कोई अलग लॉज लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर कोई बेबी है जो एक वर्कर के घर में पैदा हुआ है तो उसको कोई लॉ अलग रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि सब लोग एक जैसे हैं, इसलिए कोई भी इनके अंदर मतभेद नहीं होने चाहिए। ऑल रीजन्स आर इक्वल, सारे के सारे धर्म जात जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ऑल आर इक्वल। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन gives some rights to our citizen. Which type of rights? Freedom of speech. फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब वो कुछ भी बोल सकता है कहीं भी, मतलब कुछ भी मतलब किसी को गाली गलौज देना, ऐसा नहीं। फ्रीडम टू स्पीच मतलब अगर हम कहीं मार्केट में घूम रहे हैं तो हम किसी चीज के लिए मोल भाव कर सकते हैं, ठीक है। हमको जो पसंद नहीं है उसके लिए हम बोल सकते हैं, दैट इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, जो हमको चीजें नहीं पसंद है हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं, ठीक है। हमारा जो एक्सप्रेशन है वो शो कर सकते हैं। जैसे अगर हमें किसी पे रास्ते पे कोई गलत काम कर रहा है तो अगर हम उसको रोकते हैं तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। वी आर फ्री टू शो आवर एक्सप्रेशन, ओके। देन फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, हम किसी भी चीज के खिलाफ जाके एकत्र हो सकते हैं, ठीक है। हम लोग एकत्र होके एक साथ होके हम किसी भी चीज के खिलाफ बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते या फिर हम लोग एक ग्रुपिंग नहीं कर सकते, तो वी आर फ्री फॉर दैट। आफ्टर दैट फ्री टू फॉर्म एसोसिएशंस, हम छोटे छोटे संगठनाएं बना सकते हैं, मे बी वो पॉलिटिकल हो, मे बी फॉर सोशल वर्क, एनीथिंग एल्स, ठीक है। हम वी कैन फ्री फॉर टू फॉर्म एसोसिएशंस। नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रीडम टू मूव, लिव एंड सेटल डाउन। नाउ फ्रीडम टू मूव, हम हमारी इंडियन टेरिटरी में, पहले तो ये छोड़ के तो हम ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कभी भी कहीं पे भी घूम सकते हैं, ठीक है। वी आर फ्री। देन लिव, हम कहीं पे भी जाके रह सकते हैं। एंड सेटल डाउन मतलब वहां पे हम लोग परमानेंटली रह सकते हैं। नाउ अ पर्सन फ्रॉम पंजाब लिव इन मुंबई, अ पर्सन फ्रॉम महाराष्ट्र लिव इन कलकत्ता, दैट इज फ्री टू मूव, ठीक है। हम लोग कहीं पे इंडियन टेरिटरी में हम कहीं पे भी रह सकते हैं। आफ्टर दैट फ्रीडम टू नर्चर अवर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, हमें ये फ्रीडम दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि हम अपनी लैंग्वेज जो है उसको हम नर्चर कर सकते हैं, हमारी स्क्रिप्ट जो है, हमारा जो कल्चर है उसको। नाउ सी आवर स्कूल्स, हमारी मुंबई स्कूल में जो स्कूल्स हैं उसके अंदर भी देखा होगा आपने, कुछ तमिल स्कूल है, कुछ कन्नड़ी स्कूल्स हैं। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर नर्चर देयर लैंग्वेज, वो अपनी लैंग्वेज को अच्छा रख रहे हैं। मतलब वो कहीं पे अभी मराठी स्कूल है, मराठी स्कूल में मराठी पढ़ाना, वी आर नर्चरिंग आवर लैंग्वेज। कन्नड़ी स्कूल में कन्नड़ पढ़ाना, दे आर नर्चरिंग देयर लैंग्वेज। देन आफ्टर दैट स्क्रिप्ट, वो जो तमिल स्कूल्स में स्टूडेंट होते हैं वो वहाँ की स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो उनकी द्रविडियन स्क्रिप्ट्स है उसके अंदर लिखते हैं। दे आर नर्चरिंग देयर स्क्रिप्ट्स and their culture also. So these some freedoms are there which are given to our citizen rights. Okay, so our constitution give us these provisions to nurture our culture. Okay, these provisions in the constitution should the foundation of caste system. It helps to make the practice of vocation running in the family obsolete. इसका मतलब क्या है कि देखिए, पहले जो था, पहले ऐसे बोला जाता था कि जिसके फैमिली में जो वर्क है वही वर्क सारे लोग करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं, अगर कोई पॉटर के घर में पैदा हुआ है तो उसको आगे जाके पॉटिंग का ही काम करना है। मतलब अगर कोई कॉबलर के घर में पैदा हुआ तो उसको कॉबलर का ही काम करना है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चेंज होती गई बिकॉज दिस द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन has changed this caste system. Okay, now every field of the life become very changed, हर एक फील्ड चेंज हो गई। now which type of change?
thus began the series of minor or major changes in the society. Now everyone can go into the restaurant respective of his region, caste, race, or gender. In fact, we can see boards outside the restaurants welcoming all. Now, what happens? See, this line is very important. Boards outside the restaurant welcoming all. अब ये ऐसा क्यों लिखा है? रेस्टोरेंट सबका वेलकम क्यों कर रहा है? Because when we are dependent, when Britishers were ruling our country, and that times uh, outside of the any restaurant or hotels, this type of board is there where it is written that dogs and Indians are not allowed. See, we are living in our country, but we have no restriction for to go in this hotels. ठीक है, जब हम लोग डिपेंडेंट थे तब किसी भी होटल्स में हम लोग जा नहीं सकते थे, वहां पे बोर्ड्स लगा हुआ करता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउडेड, इस टाइप के बोर्ड्स लिखे जाते थे, जिससे कि ये पता चलता था कि हम लोग कहीं पे भी आ जा नहीं सकते. ओके, इस टाइप के जो प्रोटेक्शन थे ये हुआ करते थे. आफ्टर दैट व्हाट वी आर वेलकमिंग टू ऑल. नाउ अनदर वेरी सिग्निफिकेंट चेंज ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड is to right to express our opinions against the government. Earlier, there were limits to expressing any opinion against political rulers. Now, Indian citizens can register their protest against the politics of the government through newspapers, speeches, or on other media. इसका मीन्स क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये हक दिया है कि किस तरह से अगर हम गवर्नमेंट के खिलाफ भी हो सकते हैं तो बोल सकते हैं. पहले बिफोर इंडिपेंडेंस के पहले क्या हुआ करता था कि अगर हमें बोलना है तो सिर्फ हम गवर्नमेंट की तरफ से ही बोल सकते थे, हम गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते थे. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने अभी हमें ये प्रोविजन दिया है कि अगर कोई बात गलत होती है तो लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं. सी ऑन द स्क्रीन दे आर प्रोटेस्टिंग. ठीक है, इस तरह से हम लोग अपना जैसे स्ट्राइक्स होती हैं, स्ट्राइक में हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं. इस तरह से कुछ भी किसी भी टॉपिक को लेके हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट के खिलाफ हम न्यूज़पेपर में स्पीचेस लिख सकते हैं या फिर असेंबल होके हम लोग कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिससे कि अपना एक्सप्रेशन अगेंस्ट गवर्नमेंट हम शो कर सके. ओके, next topic is the institution of the family. Now the institution of family. Now what happened during the pre-independence period, the institutions of the family was an important identifying feature of Indian society. India was known all over the world as the country of joint families. हाँ, क्योंकि हमारा जो भारत है वो एकता से बंधा हुआ है. ठीक है, हमारे यहाँ जो फैमिलीज होती है वो ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं. नाउ सी द picture of joint family, how many members are there? Okay, and as the modernization come, as the globalization come, these families turned into a nuclear family. जैसे जैसे कि ग्लोबलाइजेशन हुआ, जैसे कि हमारे इधर मॉडर्नाइजेशन आया, तो ये सारी चीजें जो फैमिली थी वो चेंज हो गई न्यूक्लियर फैमिली में. वाई? क्योंकि जैसे जैसे चेंजेस आए तो लोगों ने अपने कामों के लिए गांव छोड़ के शहरों की तरफ आए, अर्बनाइजेशन की तरफ आए, और जहाँ पे एक बड़ा मॉब रहने लग गया तो वहां पे उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए सारी चीजें आने लगी, और वो जो फैमिली थी वो ज्वाइंट से न्यूक्लियर फैमिली बन गई. ओके, after that, next topic is social welfare. Now, what is meant by social welfare? The objective to establish the welfare state has been incorporated in the constitution instance. India is the first country in the world to do so. Social welfare program is aimed to make opportunities to full-time employment, healthcare, education, and development available to all Indian citizens. Indian society is riddled with the large scale of economic, social, educational, and cultural inequalities. Now, social welfare. What do you mean by social welfare? Some works are there which are used to do for the development of society. ठीक है, सोसाइटी की डेवलपमेंट करने के लिए कुछ ऐसे काम किए जाते हैं, उसको हम सोशल वेलफेयर बोलते हैं. सो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही ये जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हुई हैं. और ये खुशी की बात है कि इंडिया एक सबसे पहला कंट्री है जहाँ पे हर एक स्टेट में स्पेशली सोशल वेलफेयर के लिए एक
स्पेशल डिपार्टमेंट होता है फॉर सोशल वेलफेयर, ठीक है, फॉर व्हाट, सोशल वेलफेयर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब आपको मालूम है कि RTE का एक्ट है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। फिर भी अगर किसी को एजुकेशन नहीं मिलता है तो NGOs हेल्प करते हैं कि किस तरह से हर बच्चे को एजुकेशन दे दी जाए, ठीक है, उनको प्रोवाइड किया जाए। तो ये सारा काम जो है सोशल वेलफेयरिंग सोसाइटीज करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं। फिर भी आपको मालूम है कि हमारा इंडिया जो है फिर भी इकोनॉमिकली इक्वल नहीं है, एजुकेशनली इक्वल नहीं है, इवन दो कल्चरली ऑल्सो दे आर नॉट इक्वल। हमारा कल्चर भी एक जैसा नहीं है, हम लोगों की इकोनॉमिक जो हालत है वो भी एक जैसी नहीं है। देर ऑल्सो फिर भी हम लोग सोशल वेलफेयर थ्रू ये करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमारी इंडियन सोसाइटी जो है वो एक जैसी हो जाए। ओके, नाउ वी कैन सी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम इन इंडिया। सो ये भी एक सोशल वेलफेयर का ही प्रोग्राम है, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये सब जो है वो हमारी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए काम जो है वो करती है। ओके, अंडर दिस मिनिस्ट्री वेरियस प्रोग्राम्स आर इम्प्लीमेंटेड फॉर न्यूट्रिशन and child development, social security and social protection, women's welfare and development. A similar arrangement exists at the state level. तो ये सारी जो वेलफेयर ऑर्गेनिजम्स काम करती है वो होती हैं स्टेट लेवल पे। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स। शेड्यूल कास्ट जो हमारे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स पीपल है, दे आर द लोएस्ट, दे गॉट द लोएस्ट प्लेस इन अवर सोसाइटी। सबसे नीची जाति का जो है हमारी सोसाइटी में माना जाता है। बट when our constitution gives this provision to us that all people are equal, now we have to uh, enhance this stage. Okay, for that purpose government, according to 1971 census, 22% people in India belong to scheduled caste and scheduled tribes. Laws were enacted so that they got educational scholarships and representation in parliament as well as in the state assemblies. Some seats are also reserved for them in government services. Now see, why these all schemes are run, क्यों ये स्कीम्स हम लोग रन करते हैं, क्यों गवर्नमेंट करती है, टू अराइज दिस देयर स्टेजेस, उनके जो लेवल है सोसाइटी में उसको बढ़ाने के लिए। जो 22% जो पीपल है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो इनको आगे लाने के लिए रिजर्वेशंस दिए जाते हैं उनको, मे बी एजुकेशन हो, मे बी जॉब हो। उसी के साथ में जो पॉलिटिकल होता है, मतलब जिनको हम पार्लियामेंट में बोलते हैं, असेंबलीज में है, उनको रिजर्व सीट जो है वो दी जाती है टू एनहांस देयर level or their level in the society. Okay, next topic is public health. Now the constitution of India states that the primary duty of the government is to raise the people's standard of living, to assure proper nutrition and to improve public health. The Ministry of Health and Social Welfare at the center helps the state governments in this regard to make primary health services as well as all medical care available to rural people, the tribes, and the poor was an objective of the sixth 5-year plan. Efforts were made towards helping people maintain good health by giving recognition to Unani, homeopathy, Ayurvedic, and naturopathy in addition to allopathy. See what? Now, public health. Public health में क्या जरूरी है? What do you mean by public health? Because every country is made of so many people. ठीक है, पीपल से बनती ही है। अगर वहाँ के पीपल हेल्दी रहेंगे तो ही उनकी गवर्नमेंट या फिर उनका कंट्री जो है वो हेल्दी रह सकता है। और इसके लिए अलग अलग जो है प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर। तो इसके अंडर बहुत सारी स्कीम्स रन की जाती है जिससे कि जो सारे पीपल हैं इंडिया के, उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। Progress in the medical field has made a life of Indian relatively free of health concerns. In 1962, the first successful open heart surgery was performed under the leadership of Dr. N. Gopinath at Christian Medical College Hospital at Vellore.
in Tamil Nadu. Hence, it is no longer necessary to go abroad for such treatments. See, as we are seeing the changes, हम लोग बहुत सारे changes देख रहे हैं in the field of trade और in the field of education. इन सब में हम लोग changes देख रहे हैं. तो we are seeing one change in the medical field. अब medical field में because we are reading about the public health of people. किस तरह से हमारे जो देश के लोग हैं वो स्वस्थ रहने चाहिए, इसलिए हम लोग ये चेंज देख रहे हैं कि किस तरह से पहले जो बड़े बड़े जो ऑपरेशन हैं वो केवल अबॉर्ड हुआ करते थे, आउट ऑफ द कंट्री हुआ करते थे, बट द फर्स्ट ओपन हार्ट सर्जरी एट वेल्लूर बाय डॉक्टर गोपीनाथ. गोपीनाथ जो डॉक्टर थे, इन्होंने सबसे पहले हार्ट सर्जरी जो थी वो वेल्लोर में की थी, मतलब तमिलनाडु में की थी. और तब से हमें हार्ट सर्जरी के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता. अभी इंडिया में ही इस टाइप की सर्जरी जो है वो होती है. ओके, नाउ सिमिलर द इन्वेंशन ऑफ जयपुर फूड has transferred the lives of the disabled in India. Before 1968, if a person lost a leg in an accident, he had to suffer for the rest of his life. In order to uh, remedy the situation, Dr. Pramod Sethi designed a manufactured artificial limbs, noses, and ears with the help of skilled craftsman रामचंद्र शर्मा. अब सी जयपुर फूड जो है ये भी एक हमेशा एक गुण रहा है अपने मेडिकल फील्ड के लिए, एक आशीर्वाद रहा है फील्ड मेडिकल फील्ड में कि किस तरह से अगर एक्सीडेंट में अगर किसी के हाथ या पैर इसका नुकसान हो जाए या फिर कट हो जाए तो वो हमेशा पहले जिंदगी भर वैसे ही रहता था. लेकिन अभी जयपुर फूड के कारण और आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स के कारण नोज ईयर्स ये सारे, अभी तो आपको किडनी भी मिल जाती है ट्रांसप्लांटेशन में, अभी आपको हार्ट भी मिल जाता है ट्रांसप्लांट. ये सारी जी जो चीजें हैं ये हमको ऑपरेशन से हम लोग दूसरा जो है वो बना सकते हैं और अपनी लाइफ जो ये जो डिसेबल पीपल हैं ये अपनी रेस्ट लाइफ जो है वो आराम से बिता सकते हैं. The artificial body parts manufactured with the help of Jaipur food technology have made it easy for the differently unable to walk barefoot or rough surfaces. Run. So, cycling work in the fields, limb trees, climb trees, and even climb mountains, etc. They save an expenses of shoes and as there is no need to for footwear on these artificial limbs. They can bend their legs at the knee and sit cross legs. These feet are also convenient while working इन वाटर और वेट कंडीशन. सी कितने फायदेमंद है ये जयपुर फूड्स कि आप उसको पहन के रफली फेस पे भी चल सकते हो, आप उसको नी से बेंड कर सकते हो, पैर आप फोल्ड करके बैठ सकते हो. तो किसी भी तरह से आप जैसे आपका एक नॉर्मल पैर काम करता है वैसे ही ये जयपुर फूड लगा के जो है पर्सन जो है वो अपनी आराम से जिंदगी बिता सकता है. ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज किडनी ट्रांसप्लांट. नाउ द next progress in medical field, that is since this surgery can now performed in India, doctors have succeeded in saving patients lives. Such surgeries were not so common in India till 1971. 1971 तक इस टाइप की मेजर सर्जरीज जो थी वो हमारे इंडिया में नहीं हुआ करती थी. जैसे हमने अभी बोला कि ट्रांसप्लांटेशन जो था या फिर हार्ट सर्जरी थी, तो हार्ट सर्जरी भी वो पहले इंडिया में नहीं हुआ करती थी, इसके लिए लोगों को बाहर ही जाना पड़ रहा था. बट फ्रॉम 1962 में जो डॉक्टर गोपीनाथ थे इन्होंने फर्स्ट हार्ट सर्जरी की, जिससे कि हमारे देश में ही ये हार्ट सर्जरी अब होने लगी. वैसे ही किडनी ट्रांसप्लांट 1971 में फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली परफॉर्म एट क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एट वेल्लूर तमिलनाडु, सेम प्लेस. ठीक है, वहीं पे 1971 में किडनी ट्रांसप्लांट का जो फर्स्ट ऑपरेशन था वो हुआ. अब ये ऑपरेशन डॉक्टर जॉनी एंड डॉक्टर मोहन राव ट्रांसप्लांटेड द किडनी डोनेटेड बाय a living person into the patient's body. Nowadays, patients from underdeveloped countries come to India for such surgeries. So, see, this type of surgery was performed by Dr. Johnny and Dr. Mohan Rao. ठीक है, इन्होंने एक जो लाइव पेशेंट था, लाइव पर्सन था, लिविंग पर्सन था, उससे ऑपरेट करके उन्होंने एक पेशेंट को दिया. तो इस तरह से हम लोग वो जो पेशेंट है वो एक किडनी पे भी जिंदा रह सकता है. तो इसलिए ये ट्रांसप्लांटेशन जो था ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था. और जो कंट्रीज हैं जो
इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक है, अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, वो सारी कंट्रीज इंडिया में आती है इस टाइप का ऑपरेशंस के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज टेस्ट ट्यूब बेबी। Right from earlier times, having a baby is considered to be of more almost important in the Indian family system. This support to of test tube baby technology has been available to childless couples since 1978. It was under the supervision of Dr. Subhash Mukhopadhyay that the experiment of the test tube baby was successfully carried out at Calcutta. This was the first time successfully attempt at artificial conception. A girl named Durga was born. This technology helped to solve the problems of childless couples who wanted children. See, very important thing, because our nation is depend on the reproductions. ठीक है, हमारा जो ये जो वर्ल्ड है वो किस बेस पे चल रहा है, इसी बेस पे चलता है, क्योंकि जो मनुष्य है, जो कि ह्यूमन है, वो जब तक अपने जैसा कोई दूसरा देता नहीं तो उसकी फैमिली चलती नहीं है, या फिर हमारा ये जो वर्ल्ड है ये चलेगा नहीं। इसके लिए न्यू बर्थ आर वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू बर्थ होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड इन कंसर्न ऑफ इंडिया, अब इंडिया के कंसर्न आप देखेंगे तो अवर ओल्ड पीपल्स आर देयर, दे आर नॉट पीपल, दे डू नॉट एग्री विद दिस कंडीशन। ठीक है, वो इस बात को मानते ही नहीं है कि अगर कोई कपल है और अगर उसको कोई बेबी नहीं है तो उसको सोसाइटी में कोई एक वैल्यूएबल प्लेस नहीं दी जाती। और मोस्ट ऑफ टाइम द वुमन फ्रॉम दैट फैमिली, उस वो जो लेडी है उस फैमिली की, उसको तो किसी भी प्रोग्राम में या फिर कहीं पे भी उसको कोई स्टेज ही नहीं मिलता, उसको कोई सम्मान ही नहीं मिलता अगर उसको कोई बेबी ना हो। तो दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन इन मेडिकल फील्ड, जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, ये एक बहुत ही अच्छा चीज है मेडिकल फील्ड में, कि जिन्होंने एक कपल ऐसा है जिनको बेबी नहीं जन्म दे सकते, तो उनको ये ट्रीटमेंट करके उनके घर में एक बेबी जो है वो आ सकता है। एंड दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी has come in 1978। 1978 में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया टेस्ट ट्यूब बेबी का इन कलकत्ता। एंड द फर्स्ट नेम बेबी वाज दुर्गा, who taken the birth at कलकत्ता। कलकत्ता में ये बेबी हुआ, सबसे पहले उसका नाम रखा गया दुर्गा, बिकॉज दे वर्शिप गॉडेस दुर्गा, दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, इसलिए उन्होंने उस फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम भी दुर्गा ही रखा। और इस तरह से ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, ये जो ट्रीटमेंट हुई, इसके कारण हमारे देश के बहुत सारे जो ऐसे कपल्स हैं जिनको बेबीज नहीं हो सकते, तो उसके लिए ये एक एक्सपेरिमेंट जो था, ये जो टेक्नोलॉजी थी, वो एक आशीर्वाद के जैसे काम में आई। नेक्स्ट वन इज ह्यूमनाइजेशन। Immunization before 1978, every year, 6 Indian infants out of every 10 who were born faced fatal health problems in the very first year of their birth. The immunization program was taken up to overcome the threat of polio, measles, tetanus, TB, diphtheria, and whooping cough. The pulse polio immunization program started in 1995 has controlled polio. नाउ द केस ऑफ इम्यूनाइजेशन, इसका मतलब होता है किस तरह से हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़नी चाहिए। ओके, बिफोर 1978, 1978 से पहले दिस इज रिजल्टेड दैट कि आउट ऑफ 10 बर्थ न्यू बेबीज, आउट ऑफ 10 न्यू बेबीज 6 वर डाइड। ठीक है, 10 में से 6 जो नवजात शिशु थे वो मर जाते थे। क्यों मर जाते थे? क्योंकि उनको सही से जो मिलना चाहिए इम्यूनिटी के लिए वो उनको नहीं मिलता था। ठीक है, अब इसके लिए उसके बाद में देखिए बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के आपने देखा होगा, जिनके घर में छोटे बेबीज होंगे तो उनको वो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, ऐसे जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनको इंजेक्शन और ड्रॉप्स देते हैं तो टू इंक्रीज देयर इम्यूनिटी पावर। और उसी के साथ में इम्यूनाइजेशन बढ़ाने के लिए जो प्रेग्नेंट वुमेन्स रहती है उनको भी ये जो है अलग अलग टाइप के वैक्सीनेशन होते हैं, ये दिए जाते हैं। वाई? टू इंक्रीज देयर इम्यूनेशन पावर।
और जिन लेडीज को, जिन प्रेग्नेंट वुमेन्स को इस टाइप के इंजेक्शंस दिए जाते हैं या फिर मेडिसिन दी जाती है, तो उनके बेबीज भी हमेशा अच्छे बर्थ देते हैं, ठीक है, वो अच्छे पैदा होते हैं, तो उनको आगे जाके किसी भी टाइप की कोई बीमारी नहीं होती। तो जैसे आपने देखा होगा कि पल्स पोलियो का जो मुहिम है, ये बहुत बड़ा मतलब हमारा नेशनल प्रोग्राम है कि पल्स पोलियो दो बूंद जिंदगी की ऐसे करके आते हैं, और वो लोग हर जगह पे अलग अलग जगह पे खड़े रहते हैं, और वो जो छोटे बेबीज होते हैं उनको सबको 2 बूंद जो है वो पोलियो ड्रॉप के पिलाते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इम्यूनाइजेशन। उसके बाद में टीबी हो गया, डिप्थीरिया होगा, इसका एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया जाता है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर टीबी के लिए अलग वार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में टीबी को लेके अलग अलग जो प्रोग्राम्स है वो रन किए जाते हैं। मोर ओवर जो बहुत ही गरीब लोग होते हैं, जो लोग हेल्दी एनवायरनमेंट में भी नहीं रहते, उन लोगों के लिए स्पेशली इस टाइप के प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जाते हैं टू इंक्रीज देयर इम्यूनाइजेशन। ओके, ओके, इज एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? So students, can you tell me some examples of social welfare? आपके जो भी समझ में है या फिर जो भी आपने देखा होगा कि सोशल वेलफेयर को लेके कोई प्रोग्राम हुआ हो, या फिर ऐसा कुछ कि आपने देखा कि किस तरह से गवर्नमेंट इसके लिए काम करते हैं। नो वन? यस। Okay, till now what we had studied, if someone explaining the benefits of Jaipur food. No one? Okay. Till now we have we sum up our today's lecture. Tomorrow we will do the next topic. Okay. Someone want to say something? Okay, ma'am. Should I sum up my lecture? Hello. Hello. Ma'am, have you completed?